Hello everyone, myself the educator. Today I'm going to teach you analytical geometry, especially for UPSC optional student. But it is not that only UPSC optional student will get the benefit of this course. Even class 12 student or a student studying graduation having maths as a subject can take help of this course. This analytical geometry course will be basic one. I will teach you from the basics. If you have a good knowledge regarding analytic geometry, but I will teach you from basics because basic से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक लेवल पे हो. कोई स्टूडेंट का लेवल ऊपर होता है, कोई नीचे होता है. तो एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू विद the basics, even the smallest thing that I think it will be necessary, I will teach you. As I have said, even 12th class student or 11th can refer this video. It will be helpful for them and even a graduate student. But especially I am making it for UPSC optional student, maths optional student. So without wasting time, let's tell you about something about this course. I will teach analytical geometry. It will take maybe around 20 videos, but the videos time length will be small, around 30 to 40 minutes, because I know that if I made a video for 2 hours or 3 hours, then it become hectic for even a student. Even for myself, I will not go and watch the 2 hour video. So with simple explanation, taking care of basics, I will make video around 30 to 40 minutes so that it will be helpful for you, all of you, to get accustomed to all the courses. Okay, now let's start. See, the syllabus is Cartesian and polar coordinates in 3 dimension, second degree equation in 3 variables, reduction to canonical form that we will know what it is in the later in the upcoming videos. Straight lines, shortest distance between two skew lines, sphere, plane, cone, cylinder, paraboloid, ellipsoid, hyperboloid of one and two shapes, and their properties. So this is the syllabus for UPSC that UPSC can mention in its notification that this is the syllabus for UPSC maths. So without wasting too much time, let's get started. So analytical geometry. What is analytical geometry? Analytical geometry, we generally study about 2D and 3D in analytical geometry. So the basic question starts is what is 2D, or what is 3D, or what is actually 1D. Sometimes student doesn't know what is 1D or something like this. So let's start it. देखिए, and I will use both English and Hindi. Not to worry about the students who are not very versed with English. I will include both English and Hindi so that each language student is satisfied or feel easy while watching this video. So now let's get started. देखिए, coordinates का क्या है? Coordinates सबसे important होता है coordinates. क्या होता है? उससे पहला सबसे important है कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है. देखिए, 1D मतलब 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन. 0 डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन बताऊँ, एक पॉइंट. एक अगर आप पेंसिल से लीजिए और पॉइंट ड्रॉ कीजिए तो इसको हम बोलते हैं 1D और 0 डायमेंशन. 2D क्या हुआ? 2D मतलब कि हम एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे, तो ये हो गया 2 डायमेंशन. तो इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. और ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अगर आपको एज्यूम करना है कि क्या है ये, तो एक घर का एक दीवार देखिए. घर का दीवार ऐसा होता है, तो ये जो होता है ये होता है वाई एक्सिस, ये जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस. तो इसमें होता है एक्स और वाई एक्सिस होता है, इसको हम एक्स और वाई लिखते हैं 2D में. अब इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट,
इसको बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट। Sorry, a mistake here. This is not 1D. Sincere apologies. 1D, what is 1D? 1D is a straight line, zero dimension। ये एक पॉइंट होता है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन था, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए सीधा हो, एकदम स्ट्रेट, कोई कर्व ना उसमें, तो उसको 1D हम बोलते हैं। अब उसी 1D में जनरली ये एक्स एक्सेस होता है, उसी 1D में अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये हो जाता है 2D। 2D में चार होते हैं। अच्छा अच्छा, आपने एक चीज तो पढ़ा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये जीरो है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये रियल लाइन आपने पढ़ा ही होगा। तो वैसे ही होता है, एक हम रियल लाइन होता है जहाँ जीरो होता है, वहां पे एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं लंबा सा, तो इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, ये जीरो होता है। तो इस साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, इस साइड जाते हैं निगेटिव होता है। सिमिलरली इसमें ऊपर साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और नीचे साइड जाते हैं तो निगेटिव होता है। अब आइए इसमें देखते हैं, तो हर क्वाड्रेंट के अपने साइन होते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, हम इस तरफ है और ये ऊपर है, तो इसमें होगा दोनों पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। इसमें आइएगा तो हम एक्स इधर है और वाई ऊपर है, तो इसमें होगा निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। इसमें आइएगा तो हम वाई भी निगेटिव नीचे है और एक्स इस तरफ है, तो निगेटिव एक्स निगेटिव वाई। और इसमें आइएगा तो आपका एक्स हम राइट साइड है और ये नीचे है, तो पॉजिटिव एक्स निगेटिव वाई। नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि ये हेल्पफुल होगा आगे के समय में। तो जैसे जैसे आपको जिस तरह से हिसाब से नोट्स मिल रहा है वैसे से आप बनाते चलिए नोट्स, क्योंकि अब अगर आप वीडियो देख के फिर किसी किताब से नोट्स पढ़ाइएगा, वैसे ही ये वीडियो में अच्छे खासे पूरे डिटेल में होंगे। अगर आप इससे नोट्स बनाइएगा तो कोई इशू नहीं आएगा कि कुछ चीज छूटा है। अगर कुछ भी छोटा होगा आप मुझे बताइएगा, मैं कवर कर दूंगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो जनरली हमारा 2D में चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा 2D। अब सिमिलरली ऐसे जैसे वन 1D में हम एक वर्टिकल लाइन खींचते थे जो कि 90 डिग्री होता था। 2D है, 2D में भी हम एक वर्टिकल लाइन, एक लाइन खींचते हैं जो इससे भी 90 डिग्री पे हो और इससे भी 90 डिग्री पे हो, तो इसको हम बोलते हैं 3D। अब इसको एज्यूम करना है तो आपका घर, रूम, ये एक 3D है। सब कोई एक दूसरे से 90 डिग्री पे है और तीन डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन। जनरली अगर आपको देखना तो ये डायमेंशन, डायमेंशन और ये डायमेंशन, ये आपका 3D है। 3D में क्या होता है, ऑक्टेंट होते हैं, तो इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं 3D में। जैसे हमारा क्वाड्रेंट 2D में चार क्वाड्रेंट होते थे, ऐसे ही 3D में हमारा 8 ऑक्टेंट होता है, सबके अपने अपने साइन असाइंड होते हैं, जो कि आप आगे चलिएगा तो हम उसको ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। Now let's get back to what we are studying. So we have studied till now that coordinates 2D, there are four quadrants: quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. You can take this as a notes and you can write in your notes. This is a proper well versed notes, you can use it. I will add something like this is first quadrant, sorry, this is plus x plus y, you can write it, especially the 12th class student. This is minus x plus y, this is minus x minus y, this is plus x plus y, sorry, minus y. And this is a 3D, this is 3D, three dimension that have 8 octant. Now
the basic question which you can see in your book or some standard book, that what locus of a point. So generally, if the question is asked that what is the locus of a point, whose x coordinate is 5, it is asking in 3D. So let's see how we will solve it. First, we will draw a diagram. Let's see, नया एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, जो पुराना पे रहना, नया बनाते हैं, नया बनाएंगे तभी तो सीखेंगे। ये आपको डार्क कर लें, सॉरी, ये आपका एक, ये आपका एक, और ये, ठीक। अब बोला x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, बोला x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम डॉट बनाए। अब x इक्वल टू 5 अगर किसी लाइन पे बोलते हैं, अगर सपोज 2D में x इक्वल टू 5 बोलते हैं तो क्या होता है? तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होता है y एक्सिस से। तो हम बोलते हैं कि इसका लोकस क्या है, जो कि अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली 3D में क्या होगा कि अब 3D में हम इसको प्लेन में आएंगे तो प्लेन में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लेन कैसे होगा, ऐसे पैरेलल होगा। ये होगा, जैसे यहाँ पे ये क्लियर दिखाएगा। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। पॉइंट है, ये प्लेन है जो कि y और z के पैरेलल है। तो इसका लोकस होगा प्लेन पैरेलल टू yz एट अ डिस्टेंस +5 फ्रॉम द ओरिजिन। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि क्या है, तो आप एक डायग्राम बनाइए सिंपल वे में, उस पॉइंट पे कीजिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, यही आपका लोकस। लोकस जनरली क्या होता है कि उस पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन या प्लेन क्या हो सकते हैं, उसको बोलते हैं लोकस। सिमिलरली अगर पूछे कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो आपका लोकस क्या होगा? तो आप पहले x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, z एक्सिस बनाएंगे, फिर आपको बोला 3 0 पॉइंट करेंगे 3, तो x 3 है, y 4 है, इसको डॉट से मिलाएंगे 3 4 0। इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और इस पे जो ग्राफ बनते जाएगा ऐसे इस टाइप का ये इसका लोकस होगा। कुछ नहीं करना लोकस के लिए, जो पॉइंट पूछा वो ड्रॉ कीजिए, उसके पैरेलल लाइन खींचिए जिस भी एक्सिस के। अगर एक्स वाई दिया है तो जेड के पैरेलल कीजिए, वाई जेड जी है तो एक्स के पैरेलल कीजिए, एक्स जेड जी दिया है तो वाई के पैरेलल कीजिए। वो आपका लोकस आपको दे देगा, जैसे लाइन पैरेलल जेड एक्सिस पास इट 3 4 0, ये 3 4 0 पॉइंट। नाउ एक बेसिक क्वेश्चन आता है, शो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड है, जो सिंपल मेथड ये है कि अगर कोई 3 पॉइंट है, सपोज कीजिए पॉइंट यहाँ पे मैं ले देता हूँ, पॉइंट ए है x1 y1 z1, पॉइंट बी है x2 y2 z2, पॉइंट सी है z3। तो x3 y3 z3 है। तो अगर ये चेक करना है कि ये लाइन, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यूज 0 आए तो समझ लो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एक और क्वेश्चन आता है डिवीजन ऑफ पॉइंट, जैसे कि एक लाइन दिया है, उसके बीच एक पॉइंट उसको कट कर रहा है, सपोज कीजिए पी, जैसे ये है पी क्यू एक लाइन है, आर इसको कट कर रहा है। अगर बड़ा करके दिखा दे, आर कट कर रहा है, तो किस रेशियो में कट कर रहा है आर? तो इसका होता है कि हम मान के चलते हैं लेट एम और एन में उस रेशियो में वो कट कर रहा है। तो अगर वो इंटरनली कट कर रहा है, दोनों पॉइंट के अंदर कट कर रहा है आर,
उसका फॉर्मूला होता है mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny upon m plus 1, mz2 plus nz1 plus m plus 1। ये क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, बट आपने बुक में जाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। कुछ नहीं करना है, पॉइंट पी क्यू दिया होगा, बोलेगा एक पॉइंट है जो आपको पी क्यू को काट डिवीजन डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो किस रेशियो में हो रहा है, तो कुछ नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स उसके लेने हैं दोनों के, और इस फॉर्मूला में रख देना है बस, तो आपको आंसर आ जाएगा। और अगर वो एक्सटर्नली कट कर रहा है, सपोज ये पी क्यू लाइन है और वो बाहर जाके कट कर रहा है, सपोज अगर आर, ये आर है तो पी क्यू को बाहर कट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बस वहाँ पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव डाल देते हैं, एम एक्स टू माइनस एम प्लस वन, एम वाई टू एम प्लस वन, एम जेड टू प्लस एम प्लस वन। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर लिखना है और चेक करना है कि वो एक्सटर्नली बोल रहा है, ये इंटरनली बोल रहा है। इसको नोट्स में लिख लीजिए, एक तो क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ठीक करूंगा। अब ना इम्पोर्टेंट चीज है, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चीज है, इसको ही समझ। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? तो डायरेक्शन कोसाइन इसमें सबसे बड़ा इशू यही है। लेट्स सी डायरेक्शन कोसाइन। यस, डायरेक्शन कोसाइन। suppose that this is 3D, three dimension. Okay, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Make an arrow around that. Tick. That is y dash, x dash, z dash. Let a line passes through this. Let's suppose this is a line that passes through this xyz plane. Okay. Now we can make line here also, but okay, it is not an issue. Uh, for better convenience, we can make line this also. This. Okay. Let it is passing through. Now let x-axis makes, we will use different color. Let x-axis make angle alpha with this line. Okay, you can see clearly this is x-axis making angle alpha with this line. Let y-axis makes angle beta with this line, and let z-axis makes angle gamma with this line. So it is very clear for all of you. फिर से एक हिंदी में समझा देते हैं। सपोज कीजिए एक्स वाई जेड प्लेन है, हम एक लाइन ये ड्रॉ किए हैं जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। सपोज कीजिए अल्फा जो है वो लाइन एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है अल्फा, सिमिलरली वो लाइन वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और वही लाइन जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। हम उसमें कोसाइन लगा देते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो फिर से सिंपल सा इजी वे में समझते हैं कि एक 3D है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, ठीक। एक लाइन है जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से, वो कहीं से पास होता है बट कन्वीनियंस के लिए ओरिजिन लिया है, वैसा कुछ नहीं है, कहीं से पास हो सकता है। ये लाइन है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्स जो इस लाइन से एंगल बनाएगा इसको अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस जो इस लाइन से एंगल बनाएगा इसको बीटा बोलते हैं।
जेड एक्स जो इस एंगल से लाइन बनाएगा, इसे सपोज करो ये हो गया गामा। तो ये मेरे पास अल्फा बीटा और गामा एंगल्स मिल गए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसके साथ हम अगर कॉस लगा दिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं है। आइए इस पे देखते हैं, पहले पढ़ते क्या लिखा है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विच एनी लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ना कि निगेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन देखिए ये है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये आपका है, ये लाइन पास कर एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। देन cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines and it is denoted by LMN. cos alpha को हम L से, cos beta को M से, and M से cos gamma को। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब इसको प्रूफ भी, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ यहाँ पे है। ये हम डायग्राम बनाए हैं, ये है सिंपल वही वाला डायग्राम है। एक पॉइंट है ओरिजिन से पी ओ पी, एक लाइन ओपी एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक। बस यही है। When a direct line OP passes through origin makes an angle alpha beta gamma with respect to z respectively, यही मैंने बोला, ठीक है। अब ना OP स्क्वायर, ये है OP, तो OP स्क्वायर अब क्या होगा, अगर ये ले लें तो OX स्क्वायर OY स्क्वायर एंड OZ स्क्वायर। अभी आप कैसे, तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी। ये R है, R कैसे बराबर होगा, तो ये ओ, इसके ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये आपने प्रॉपर्टी का पढ़ा होगा वेक्टर में, तो उससे पता चल जाएगा ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड स्क्वायर, डिवाइड करो आर से तो 1 = x/r y/r एंड z/r का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि x/r बराबर एल स्क्वायर कैसे। भाई यहाँ देखते हैं कि x/r ले देते हैं, x/r बराबर एल स्क्वायर कैसे, एल कैसे, एल मतलब मेरे पास क्या है, cos अल्फा। लाइक अब सी एक ट्रायंगल देखिए, पीओबी, पीओबी ट्रायंगल, पीओबी देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होता है कि, अब यहाँ देखिए cos अल्फा बराबर क्या होगा, b/h, ठीक। बेस क्या है x और हाइपोटेनस क्या है r, x बराबर क्या हो जाएगा r cos अल्फा, नहीं सॉरी, तो x/r cos अल्फा, x/r cos अल्फा। तो यहाँ से वैसे ही आपका y/r, y/r साइन cos बीटा एंड z/r cos गामा, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रूफ है आपका। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, बेसिक है। खाली आपको इसमें एक दिक्कत आएगा, ये कहाँ से है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करके हमने ये किया है। अब हम आते हैं डायरेक्शन रेशियो पे। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? A set of three numbers which are proportional to the direction cosine of a line are sufficient to specify the direction of the line. डायरेक्शन रेशियो इन जनरल क्या होता है, वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरली क्या होता है, क्या हम मान ले, लेट ए बी सी द डायरेक्शन रेशियो, तो एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी बराबर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो ये आता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल बराबर ए
ये समीशन ए स्क्वायर केवल ए स्क्वायर नहीं बनेगा, ये होता है समीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। सिमिलरली ये अब आप ये सोच रहे हो ये कहाँ से आया, तो एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी, इसमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगा है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार जाके कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो देखे वो क्या होता है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जनरली अगर हमारे जो कोई क्वेश्चन पूछे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस पॉइंट दिया पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बस माइनस कर दिया 2 - 3 -1 - 2 और 5 -1 -1, ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, ए बाय अंडर रूट समीशन, ये ए क्या है -1 अपॉन स्क्वायर 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 अंडर रूट, सिमिलर -3 अपॉन स्क्वायर 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 स्क्वायर, सिमिलरली 6 अपॉन स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो ये आपका बेसिक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ टेंशन वाला नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा बात है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक लाइन का एक्स वाई और जेड एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, उसको अगर कॉस में हम लिखते हैं उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। कुछ टेंशन नहीं लेना, खासकर 12th स्टैंडर्ड वालों, मे भी ग्रेजुएशन वाले और यूपीएससी वाले समझ लें, तुमको उतना लोड नहीं लेना है, तुमको बस फॉर्मूला देखना है, सब रट लेना है कि ये होता है। कोई भी पूछे क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तब बोलना है बस सर कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कॉस के टर्म में उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि निकलता है पॉइंट से। पॉइंट डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, अगर 2 पॉइंट पी क्यू दिया है उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, वो आपका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए। फिर क्लियरली फिर से बता रहे हैं, ये समीशन ए स्क्वायर, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये केवल ये नहीं है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट आता है जो लास्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे सपोज ये दो लाइन है, ये और ये, अगर इसके बीच एंगल कोई थीटा है तो ऐसे निकला तो कॉस थीटा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अब L1 L1 N1 क्या है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। अगर इसको डायरेक्शन रेशियो में लिखना है, तो ये आपका है, पुट करने पे आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्मूला है। तो ये है आपका आज का बेसिक, बहुत ही बेसिक, मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, कुछ ज़्यादा ऊपर का नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आगे का देखेंगे क्या होता है, बट ये है एक बार आप देख लीजिए, इससे नोट्स बना लीजिए, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। That is from my side. See, mathematics is the one thing which need practice. I have taught you all this. You just have to go to home, sit and watch this video 2 times, 3 times if you're not understanding this, and then do it by yourself. What is 1D? What is 2D? What is 3D? Draw by yourself one time. And how are Lucas are finding? Draw it by yourself. Draw in your notes with different colors so that it will be clear for all of you. Similarly, all these methods are very easy. Just find question in your notebook, in your in your book, and solve question. See if you are getting it or not. Similar, if you have studied determinant, this is determinant formula, this is determinant formula, this is determinant formula. You just have to put the value and find the value. Just have to put the value and find. If it is some zero, then the points are collinear. If it is not, then it is not. Simple, very simple. Similar division of point. Simple putting formula. It is so basic that if one knows this formula, every question on it will be solved easily. Just one thing which you have to take in mind, that whether the question is asking internally or externally. That you have to keep in mind. Similar direction cosine. What is direction cosine? A line which makes angles with x, y, z and written in terms of cos.
That is known as direction question. Similarly, direction ratio of proportional. Write in your notes this definition, this solve question. Similarly, this one, find question in your book, solve it. We'll meet tomorrow for further topics. Thank you so much. Jai Hind. Good night.